Okay guys, so let's continue Spring Boot. So in last class we left some questions not questions but I left some tasks for you guys. First is look out for the features, then HTTP verbs, and then ways to create Spring Boot application and which one is better, right? So these are some questions. So let's start with that. So first of all, let's talk about the ways to create Spring Boot applications. So as of now, we have three ways to create Spring Boot applications. First, you can go for Spring Initializer. That's actually a website. By using that, you can create a Spring Boot application. Next is CLI, which is again a part of a Spring, where you have to install some commands and tools, and then you can create your project by using command line arguments. So it's one of the way, and again you have to use some commands, then you will get your project, which is kind of tedious for me as a developer. I don't think it's a good idea. And next is STS, that is an extension of Eclipse, and it stands for Spring Tool Suite. So either of ways you can get your Spring Boot application. So that's one of the answer for third question. Okay, like ways to create and which one is better. So I suppose for me, the most convenient way is using this website, because you don't have to download any even external tool, because what is STS? It stands for Spring Tool Suite. This is one of the dedicated tool or a software or IDE which solely works for Spring Tool. I can show you this thing, STS. So basically that's a it's an extension of Eclipse, as I said, and this is completely based for or used for creating any Spring Boot application. So right now it's STS 4 version is in development. So you can go for it, download it, and again, but why you have to download or use any external or third software? Well, you already have Eclipse or IntelliJ software like that. So well, by the way, we are going to use IntelliJ here. Okay, so coming back to the question, so which one is better? I'll prefer this website, Spring Initializer. How it looks like this. Okay, let me take a screenshot for this, so I will have some reference. That's how it looks. Let me take this whole thing with me. Okay, fine. So this is how it looks like. So STS is like, I mean, sorry, not STS, Spring Initializer. So होता क्या है इसमें? You have to fill all the steps like group, artifact, name, description, packaging, Java, and once you're done with this, you can go for dependencies. So discuss in more detail, but for now we have to first of all finish some stuffs which we left earlier. So we discussed about JSON in previous class. So let's complete that one section. Not this one, this one. JSON. It stands for JavaScript Object Notation. So that's what understand full form of it, but definitely it's not or nowhere connected to JavaScript at that time when they give this full form. So yeah, they have this thing in mind, okay, well, we can call this JavaScript, but nowhere it's like connected with JavaScript that you have to learn a new language. No, आप लोगों को कोई भी नई लैंग्वेज नहीं सीखनी है. JavaScript just for the types we're talking about here, data types. So when you're talking about JSON, so it supports multiple types like number, string, boolean, array, object, or null. And we already have discussed about number, string, array, object in our previous class, how to create it and how you can create its counter Java classes. So that we already have in detail. Like number में आप numbers दोगे, string we know what is string in Java, so that is completely same. Boolean true or false, इसके अलावा third option कोई होगा नहीं. Then array, or sometimes we also call this collections. So it goes in a square bracket. So इसमें 1 to 3 हो सकता है, string हो सकता है, और custom objects भी हो सकता है. It's totally up to you. Okay. Then object. So if you have to create any JSON object, what you have to do, put or wrap that data under curly braces. अगर curly bracket में आपके पास data है, तो we can say that that's a object. That's an object for JSON. And of course null, because कुछ भी हो सकता है. अगर कुछ भी नहीं है और आप blank या कुछ ऐसा पास कर रहे हो, तो उसको null की कैटेगरी में डाल सकते हो. तो empty value को भी हम null कह सकते हैं. But you have to actually mention null as a word. Using the word null makes it more clear that okay, that you are passing null thing here. So these are the 5 basic data types for JSON. So ये हम already discuss कर चुके हैं first class में. I don't think we need to repeat it. So these are some supported data types for JSON, and you should know. Okay, this is done. Next is, once we are done with the JavaScript, sorry, not JavaScript, once we are done with JSON type, next thing is flow, or you can say MVC design pattern. So again, we are going to fulfill all these requirements. If you see this image, it
gives you lots of flows. It starts from 1 and goes till 14. So हो क्या रहा है, client is requesting something, it goes to the server. Okay, this big box is a server and इसमें एक application है XYZ app. Likewise we can have multiple applications, app 2, app 3 and app 4. So in a single server you can have multiple applications, right? So that's happened here. So you can have multiple applications running on. Client ने इस particular request की बात, इस application की बात करी है XYZ app. कुछ नाम भी हो सकता है. I'm calling it XYZ app. Okay, so client requested something, so it goes to the server, then that particular application, and from that particular application it goes to a particular controller. So controller यहाँ पे क्या कर रहा है? It is acting as a front uh, you can say गेटवे. तो जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से, इट गोज थ्रू अ कंट्रोलर. तो दैट्स अ एंट्री गेट. जब भी आप कोई एपीआई कॉल करोगे या कोई भी फ्लो कॉल करना चाह रहे हो, सो इट गोज थ्रू अ कंट्रोलर विच एक्ट एज अ फ्रंट कंट्रोलर और फ्रंट गेटवे. गेटवे कह सकते हो इसको आप फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, वंस रिक्वेस्ट गोज देयर, सो कंट्रोलर विल प्रोसेस ए रिक्वेस्ट कि एग्जैक्टली व्हाट्स required, right? Client is requesting what, so accordingly it goes to a particular service. By the way, these all 5 boxes, these are known as layers. Okay, what we are doing, actually we are doing layering. One thing is you can wrap or write everything in a single class, or you can segregate it as per its requirement. So first box हमारा controller है, or you can say first layer हमारा controller layer है. Then it goes to service layer, which is actually a place where you write a business logic. जो भी जावा का कोड आप लिखने वाले हो, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेसिंग वाइज होता है, कुछ कॉपी पेस्ट हो सकता है, कुछ फाइल की रीडिंग राइटिंग हो सकता है, कुछ भी जो भी आपको लॉजिक लिखना है, दैट गोज इन सर्विस लेयर. Or during that processing maybe you need to connect with database, so service layer will call database layer. DAO और repository भी कहते हैं इसे, mostly जब भी हम पैकेज बनाएंगे तो DAO या repository नाम से बनाएंगे. So it's totally up to you, it totally depends upon who is configured it, so it varies. It's not fixed that you have to call it DAO or you have to call it repository, it varies. Okay, so service layer पे आप logic लिख रहे हो, maybe that logic needs some database और values, so it goes here. Let's suppose एक SQL query जा रही है, query database में गया, इसने कुछ कुछ values fetch करे. Let's suppose we have database here, this is our DB, and then ये सिंटैक्ट करा, कुछ भी वैल्यू जो रीड राइट करनी थी वो करी, कुछ रिस्पॉन्स वाला डेटाबेस से वो मिल गया उसको. देन जो भी रिस्पॉन्स आया वो इसमें मैप करेगा किसमें, एंटिटी क्लासेस. वी हैव डन दिस अर्लियर, राइट? जब हम हाइबरनेट पढ़ रहे थे तो वी डिस्कस अबाउट एंटिटी क्लासेस. तो सेम यहाँ पे हो रहा है, डेटाबेस पे इसने रीड करा, देन वट एवर वैल्यूज कम्स फ्रॉम द डेटाबेस इट गोज टू मैप्स टू एंटिटी क्लासेस, और फिर जो भी डेटा आया डाउ लेयर ने वापस सेंड कर दिया सर्विस लेयर पर. सर्विस लेयर ने उस डेटा को प्रोसेस किया, कुछ भी कॉपी पेस्टिंग जो भी करना था करा, देन इट गोज बैक टू कंट्रोलर. और कंट्रोलर क्या करेगा, उस डेटा को जो सर्विस ने दिया है उसका प्रोसेस करेगा और डेटा या वैल्यूज को मैप करेगा पोजो क्लासेस में. फिर पोजो क्लास की वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी. पोजो क्लास इज नथिंग, राइट? वी नो पोजो क्लास, प्राइवेट फील्ड्स एंड पब्लिक गेटर सेटर्स. सो अल्टीमेटली पोजो क्लास हो या फिर एंटिटी क्लास, हम इन दोनों लेयर्स के गेटर सेटर यूज करने वाले हैं. तो कंट्रोलर डेटा लेगा सर्विस लेयर से, प्रोसेस करेगा प्रोसेस क्लास में, सॉरी पोजो क्लास में, एंड जो भी डेटा फॉर्मुलेट होगा, जो भी रेस्पॉन्स क्रिएट होगा वो कंट्रोलर क्रिएट करेगा, और जो फाइनल रेस्पॉन्स होगा इट गोज बैक टू द क्लाइंट. So that's the complete architecture or a flow you can say. So that's a high level picture and that's how we typically do in any Spring Boot application. तो ये हम डेफिनेटली करेंगे. अभी तो बस एक आपको एक ओवरव्यू देते, पिक्चर दे दिए कि क्या हम करने वाले हैं फ्यूचर क्लासेस. सो जब हम अपना एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये ही आर्किटेक्चर हम फॉलो करने वाले हैं. तो जैसे जैसे मैं क्लासेस या पैकेज बनाऊंगा, आई विल रेफर दिस इमेज अगेन अगेन, सो यू गाइज विल बी मोर क्लियर व्हाट वी आर अप टू. सो दिस इज एक्चुअली एमवीसी डिजाइन पैटर्न, और इसमें हम लेयरिंग करते हैं. लेयर्स इज नथिंग बट अ पैकेजेस, है ना? पैकेजेस क्रिएट कर दो, वो लेयरिंग हो जाएगी. सो लेयरिंग मे बी न्यू टर्म, बट इट्स नथिंग जस्ट अ पैकेज. यू हैव टू क्रिएट अ पैकेज. कंट्रोलर के लिए अलग पैकेज, सर्विस के लिए अलग पैकेज, डाउ क्लासेस के अलग पैकेज, पोजो के लिए अलग, एंटिटी क्लास, और जो भी आगे फर्दर रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हम अलग अलग पैकेजेस बनाएंगे ताकि हमारा कोड अलग अलग जगह रहे, ताकि उसको रीयूज कर सके. So this was about MVC design pattern. Okay, so we're done with this JSON value types. Then we're done with MVC design pattern. Next, um, let's create application or using this way, this Spring Boot application by using start or spring.io. So we already have this stuffs. Let's see
not this one, this one. Okay. So what you have to do, you have to visit this site start.spring.io. So this is same information what we filled earlier when we tend to create Spring Boot application in sorry Hibernate or Maven application in Eclipse. So वहाँ पे भी हमें प्रोजेक्ट का वहाँ पे हम ऑलरेडी पिक करते थे कि हमें Maven प्रोजेक्ट पिक करना है. यहाँ पे ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि which kind of project you want to create, Gradle or Maven. So I have picked Maven. Language definitely we are learning Java. So Java पिक कर लिया यहाँ पर. Spring Boot का कौन सा वर्जन पिक करना है? So as of now this is one stable stable version 3.18 and 3.22. कैसे पता? क्योंकि बाकी स्नैपशॉट या M1 के अभी चल रहे रिलीज चल रहे हैं, इनमें डेवलपमेंट चल रही है. सो 3.22 and 3.18 these are two stable versions on this screen on 23rd January. ओके, ये फिल कर लिया. नेक्स्ट यू हैव टू एंटर सम डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट. सो वहाँ पे हमने ग्रुप के डिटेल्स, आर्टिफैक्ट, नेम, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको सही लगे, जो भी आप फिल करते जाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल करता जाएगा. तो व्हाट आई हैव गिवन ग्रुप org.deluge, देन आर्टिफैक्ट एस बी फर्स्ट टैब, एंड देन वो अपना रीनेम हो जाएगा यहाँ पर, और मैं डिस्क्रिप्शन दिए. एंड देन आई हैव पिक्ड पैकेजिंग जार फाइल. ये अभी की ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा. फॉर नाउ आई हैव पिक्ड जार. जब कभी डिप्लॉय करेंगे तब इस बारे में डिस्कस करेंगे. And last, which version I have picked? Java 17. So you are free to use 21 as well, but as of now I'm picking the lowest version 17. So Java 17 and Spring Boot का 3.22 version. So मैं already इसको यहाँ पे लग चुका हूँ. Java का 17 version and Spring Boot का 3.22 version. And I have taken the screenshot as well from my machine that I am using 17.0.9 version. That's here. Okay. So this section is done, that what version we have to pick from when we are going to create Spring Boot application. So this is done, and once left section is done, आपको अब libraries पिक करनी है, dependencies पिक करनी है. तो इस पर क्लिक करेंगे and you have to type. So अभी मैंने सिर्फ एक पहला dependency पिक किया. अगर इसको नेगेटिव कर देता हूँ, क्लिक करते हैं, तो you have to just type web. तो ये आ जाएगा ग्रीन. जिस पर ग्रीन होगा आप मतलब हाईलाइट कर रहे हो, उसको क्लिक कर दीजिए, ये ऐड हो जाएगा. क्या कह रहा है ये? build why we need this library? To build web applications, to include RESTful APIs, to include Spring MVC features, and it uses Apache Tomcat as the default embedded container. इसका मतलब ये है कि जब आप ये लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ऐड करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको अपाचे टॉमकैट देता है. एम्बेडेड मतलब इनबिल्ट ये मिलेगा आपको. आप कुछ ऐसा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट को नहीं चलाना. स्प्रिंग बोट गिव्स यू लग्जरी दैट यू कैन गेट योर एप्लीकेशन रन विद इन अ सेकेंड. आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना. ये आपको एक बनी बनाई टॉमकैट अपाचे देता है, बस आपको रन करना है. ये अपने आप ही सर्वर को रन कर देता है. वो भी देखेंगे हम कैसे. वंस यू आर डन विद ऑल द डिटेल्स, वन थिंग यू कैन डू, एक्सप्लोर. जनरेट तो सीधा आपको जनरेट करके दे देगा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर. आपको एक्सप्लोर करना है. तो यहाँ पे क्या करेगा, जो अगर आप लोग मैवन प्रोजेक्ट पे, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैवन प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, तो ये आपको उसी का आर्किटेक्चर दे देगा कि SRC में आपको जावा कोड्स वगैरह देखिए जो भी हमने नाम दिए थे, वो ये साइट ऑलरेडी इसको क्रिएट कर ली जावा फाइल्स वगैरह. तो ये इसकी क्लास बना दी इसने, एक फाइल प्रॉपर्टीज फाइल, और ऐसे एक पॉम फाइल भी है. तो पॉम फाइल में मैंने वेब पिक किया था. तो ये रहा लाइब्रेरी स्प्रिंग बोट स्टार्टर वेब, राइट. तो ये मैंने कहाँ से देखा? मैंने एक्सप्लोर में जाकर, ये एक्सप्लोर करके. और व्हेन यू आर सक्सेसफुली did all this thing, जब आपको लगे कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल माय डिटेल्स, यू कैन क्लिक जनरेट. तो इस पर क्लिक करना है और सेव कर लेना है. ओके. तो ये एक जार फाइल, एक सॉरी जिप फाइल आपको दे देगा. देन यू कैन गो फॉर दिस लोकेशन डाउनलोड्स. इसको मैं कट करूँगा, अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, सेशन दिस और स्प्रिंग बूट यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है. तो ये कर देते हैं और इसको अनजिप कर देते हैं. एक्सट्रैक्ट दिस. ये जिप फाइल आ गया, इनको डिलीट मार देते हैं. डन. देन इसको ओपन करते हैं. इस पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको कट करके बाहर आके इसको पेस्ट करते हैं, ताकि जब हम ओपन करें तो रूट पे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए. सो दिस इज माय एप्लीकेशन. ओके, डन. नाउ वी हैव टू ओपन दिस प्रोजेक्ट इन IntelliJ. तो वो करते हैं. सो व्हाट वी डिड सो फार, we have visited this site, we have filled all the details as per our requirement and clicked on generate button. generate button पे क्लिक क्या करने से क्या होगा, जो भी आपकी डिटेल्स है इसके अकॉर्डिंगली एक जिप फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड करिए, अपने किसी भी एक लोकेशन में जाके उसको अनजिप कर लीजिए. वंस यू डन विद अनजिप, आपको IntelliJ ओपन करना है, और IntelliJ जब ओपन होगा तो आपको ये प्रोजेक्ट को लोकेट करना पड़ेगा. तो मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इस लोकेशन पर, राइट, यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो ठीक है, इसको भी देखते हैं.
ये अच्छा ओके, ये ऊपर एप्लीकेशन आ गया, मैं इस पर जाऊँगा, इस बात को कॉपी कर लूँगा और न्यू प्रोजेक्ट पे जाकर क्लिक करना है। और ठीक है, मेरे को पिक करना है 17 वर्जन, और ये सब जितनी पड़ेगी। ये काम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट नहीं, ओपन करते हैं और यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर दो। ओके, ये आ गया और यहाँ पे ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो ओपन में जाके प्रोजेक्ट को सीधे ओपन कर लेंगे क्योंकि हम पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा ये कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को ट्रस्ट करते हो। मे बी समटाइम्स कुछ वायरस वगैरह चीज़ होती हैं, तो ट्रस्ट करने के बाद इसको ट्रस्ट कर दीजिए, तो ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे लोड कर देगा। सो इट माइट टेक सम टाइम एज पर द लाइब्रेरीज। अगर आपके पास मैवन या आपने कभी प्रोजेक्ट इंटेलिजेंस थ्रू नहीं बनाया होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सभी को बिल्ड करेगा। और अगर सब कुछ बिल्ड सक्सेसफुल होगा तो ये स्कैनिंग कंप्लीट होकर आपको कोई ग्रीन टिक मिल जाएगा कि ये जो फाइल है सिंक में हो गया। तो बिल्ड पे जाके आप देखेंगे तो ये सिंक पे आ गया। इन केस नहीं होता है तो आपको मैवन पे जाना है और ये जो बटन है सर्कल वाला, इस पे इसको कहते हैं रिलोड। तो जो भी आपकी लाइब्रेरीज इस प्रोजेक्ट में पड़ी हुई हैं, कई बार सिंक अप नहीं हो पाता इंटेलिजे का आपके लोकल रिपोजिटरी से जहाँ पे ये जार फाइल स्टोर है, तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये वापस एक बार सिंकिंग करेगा, देखिए लोड हो रहा है। और अगर सब कुछ रहेगा तो ये ग्रीन टिक लगा देगा एंड देन यू कैन क्लिक बैक ऑन मैवन, इट्स डन। सो ये रहा हमारा एप्लीकेशन और ये सब चीज़ें से पड़ी हुई है। तो मैं इसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ मैं। तो ये रहा यहाँ पर ये एप्लीकेशन। और इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या डाल कर रखा हुआ है, एक पॉम फाइल की एंट्री कर रखी है। तो पॉम फाइल ये रहा और इसमें मैंने जो ऐप डाला था ये वाला, ये पड़ा हुआ है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है टेस्ट वाली लाइब्रेरी की, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। लेट्स डिलीट दिस अप। इसको डिलीट करने पर क्या होगा, जैसे ही आपको दिखेंगे तो यहाँ पे एक मैवन का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज किया है लाइब्रेरीज पर। इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी भी हमने चेंज किया है, तो डेफिनेटली आपको वापस सिंक अप करना पड़ेगा। क्लिक कर दीजिए, वापस सिंक चलेगा इंटेलिजे का और ये ग्रीन टिक। ओके, इट्स डन। बट इफ़ यू एक्सपेंड ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज आता है ये वाला, ये एरर देगा क्योंकि हमने टेस्टिंग की लाइब्रेरी डिलीट मार दी है। तो इस फाइल को डिलीट मार देते हैं। सो राइट क्लिक एंड डिलीट। ओके, इसको डिलीट कर दिया, खत्म। पॉम फाइल क्लोज करते हैं और जो हमारा मेन फाइल है वो है मेन के अंदर। तो एक्सपैंड एस आर सी मेन जावा दिस एंड दिस अवर फाइल, ये रहा। सो घूम फिर के हम वापस से मेन मेथड पे आ गए। इनिशियली जब हमने कोड जावा स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी मेन मेथड था, यहाँ पर भी मेन मेथड ही है, ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और कुछ नई चीज़ लिखी हुई है, नई लाइब्रेरी जो कि स्प्रिंग की है। ओके, ये हमारी क्लास थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको फिक्स कर लेते हैं। तो राइट क्लिक, रिफैक्टर, रीनेम, तो ये एफ, इसको हटा देते हैं। अब ठीक है, स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन एंड रिफैक्टर एंड डन। ठीक है, तो हमारी क्लास भी सही होगी, ये हमारा पैकेज का नाम। ओके, एंड ये हमारी क्लास। तो इस क्लास के बारे में आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर अबाउट टू रन अबाउट दिस एप्लीकेशन। तो रन करते हैं। तो क्या करना है, मेन मेथड है, रन कैसे करते हैं, सिंपली राइट क्लिक, रन एज एंड मेन मेथड रन होगा। और इट माइट टेक सम टाइम, सो लेट इट टेक। अभी कह रहा है कि मेरे पास जावा 5 का कुछ इशू आ रहा है, तो ओके, इसको चेंज करते हैं। राइट क्लिक, मॉड्यूल सेटिंग्स देर, देन यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट पे जाकर ये 14 पे कर रखा है, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 17। अप्लाई करना है और ओके, कुछ नहीं करा, राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर और फिर मॉड्यूल सेटिंग, राइट क्लिक, मॉड्यूल सेटिंग्स, और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाकर लाइब्रेरी चेंज कर लेनी है। ओके, तो मैंने 17 कर दिया जो कि मेरे पास पड़ा हुआ ऑलरेडी। अब वापस रन करते हैं। सो राइट क्लिक, रन एज। वैसे एक बार अगर आपने एप्लीकेशन को रन कर लिया है, चाहे एरर ही आया हो, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस को लोड कर लेगा। तो यहाँ ग्रीन बटन दबा के रन कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो इसने पिक कर लिया जावा 17.0.9, दैट्स माई वर्जन एंड यू कैन सी टॉम कैट स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, टॉम कैट अपने आप ही आया और स्टार्ट भी हो गया। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 3.3 सेकंड्स में। कुछ था नहीं, ब्लैंक एप्लीकेशन है, इसलिए फटाफट स्टार्ट भी हो गई। अब अगर टेस्ट करना हो टी पे, कैसे टेस्ट करेंगे वो देख लेते हैं। इस पे गए, लिखेंगे लोकल होस्ट 8080 और एंटर, ये आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास कोई ऐसा लोडिंग पेज नहीं है या कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं है जो इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करे, तो इसलिए ये दिखा रहा है वाइट लेबल एरर। पर तो मैंने इसको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। तो अगर आप ये लाइब्रेरी ऐड करते हो यहाँ पर और ये कोड चलाते हो, सो यू विल गेट दिस मैसेज, टॉम कैट स्टार्टेड ऑन दिस। इतना टाइम लगा और हमें क्या मिला मैसेज, लोकल होस्ट पर वाइट एरर लेबल मैसेज। तो ये हमें मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक ब्लैंक एप्लीकेशन को रन करते हो। तो एटलीस्ट हमने आज क्या देख लिया कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे करते हैं और इंटेलिजे पे कैसे इसको रन करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मुझे कुछ कोड रन करके देखना हो तो क्या करेंगे,
तो मैं एक फटाफट से छोटा चेंज कर देता हूँ, डिटेल में बाद में समझाऊंगा उसको, अभी नहीं, बस अभी हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट लिखते हैं, एंड एनोटेशन लिखते हैं रेस्ट कंट्रोलर, देन गेट मैपिंग और स्लैश लगा देते हैं, देन पब्लिक वॉइड, वाइडनेस को स्ट्रिंग दे देते हैं, टैमो लिख लो, कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर। इसको वैल्यू कर लेते हैं, देन I'll say hello from Spring Boot app। डबल कोट्स बड़ी दिक्कत देते हैं कभी कभी। ओके, दिस इज डन। ठीक है, इतना डन करने के बाद एप्लीकेशन को रीसेट कर सकते हैं, कैसे, ये क्लिक करके रीरन, तो ये सर्वर को स्टॉप करेगा और वापस से रन कर देगा। सो दैट्स वन कन्वीनियंट बटन हियर। एंड ओके, वापस स्टार्ट हो गया 80 पर, ट्राई करते हैं इस बार एप्लीकेशन का इस पर, और क्लिक करा 80 पर, एंड हियर वी गो। सो नाउ वी आर गेटिंग हेलो फ्रॉम एसबी ऐप। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आप सब कुछ करते हैं, सेम रेस्ट कंट्रोल लगाया, स्लैश लगाया, हेलो फ्रॉम एसबी ऐप, तो आपको मिलेगा ये मैसेज, हेलो फ्रॉम एसबी ऐप लोकल स्टेट पर। ठीक है guys, तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे एंड पॉइंट बना सकते हो। तो एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं, ऐसे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बाकी क्लास पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको होमवर्क बता चुका हूँ। होमवर्क है आपके पास कि रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में डिफरेंस दिख के आइए, देन ये पोस्टमैन टूल होने चाहिए, देन ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी, दो रिक्वेस्ट टाइपिंग गेट एंड पोस्ट, इनके बारे में डिफरेंस देख के आइए। एंड फाइनली जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, अगर आप एक्सपेंड करोगे रिसोर्सेज को, यहाँ पर एक फाइल पड़ा हुआ है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, फिलहाल अभी ब्लैंक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसे ही मिलता है। बाकी हम अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चेंजेस क्या होंगे वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या एंटर कर सकते हैं आप और कैसे। तो ये टास्क है, होमवर्क इसको करके आइएगा, और कोई डिटेल या कोई डिस्कशन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आज हमने क्लास में क्या देखा कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कितने तरीके से बन सकता है। हमने ये दो वर्जन यूज़ करे, जावा के लिए 17 और स्प्रिंग बूट के लिए 3.22। देन आफ्टर वी सॉ जेसन डेटा टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है, 5-6 वो पढ़े हमने। देन वी सॉ एमवीसी आर्किटेक्चर कि कैसे डिज़ाइन करते हैं, और ये एक तरह से लेयरिंग होती है प्रोजेक्ट में ताकि हम कोड को प्रॉपर लिख सकें। देन वी सॉ प्रोजेक्ट कैसे, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी वेबसाइट से। तो ये वो उसका स्क्रीनशॉट, इसको भी लिख देते हैं, उसको बाद सेव कर लूँगा मैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और उसके बाद जब ये आप रन कर लोगे इंटेलिजे पे, वो भी हमने देख लिया कि इस एप्लीकेशन जब आपने डाउनलोड कर लिया जार फाइल, जिप फाइल उसकी, तो कैसे इंटेलिजे पे उसको लोड करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, और हाउ टू रन दैट कोड, वो सब करा हमने। और फिर हमने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक एंड पॉइंट बनाया टेस्ट करने के लिए कि अगर डिफ़ॉल्ट पेज पे हो आप लोग, होम पेज पे, और आपको मैसेज मिलता है, मैसेज इस टाइप का, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, नॉट दिस वन, दिस वन। अगर आपको ये वाइट लेवल एरर मैसेज मिल रहा है तो कुछ मिसिंग है, मतलब हमारा होम पेज जो है उसमें डेटा मिसिंग है। तो हमने एक होम पेज के लिए एक सिंपल सा एंड पॉइंट बनाया जो कि ये था। तो इतना कर दिया हमने तो हमारा एप्लीकेशन रन हुआ, और हमें मैसेज मिल गया हेलो फ्रॉम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इसको और थोड़ा एनहांस करेंगे और चीज़ यूज़ करेंगे, और प्लस सेम चीज़ हम लोग पोस्टमैन में रन करेंगे, बट नॉट टुडे, टुमारो इन टुमारोज क्लास। सो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।